Okay, so guys, this is another episode of Makeup Shack Up and smile देख रहे हो मेरी? आँखों में चमक देख रहे हो मेरी? Who do we have today? We have Bhuvneshwar Manas, And what do you have to say about him? makeup artist, influencer, more than an artist to be honest. He's an artist itself, not just an ordinary makeup artist. He is walking art. If you want to see what art looks like, you look at him, जो हम आपको बहुत जल्दी अभी दिखाने वाले हैं. तो appreciate this art. We'll get to know this art and we'll talk to this art. And I am so excited to be. Hi, I'm Prerna. And hi, I'm Arjun. And this is Makeup Shack Up. And today we have with us Bhuvneshwar. Hi, Bhuvneshwar. हेलो एवरीवन. क्या बुलाया आपको? भूवी. भूवी. भुवनेश्वर बहुत बड़ा हो जाएगा. Yes, बहुत बड़ा, छोटा and easy. भूवी. Call you Bhuvi. Yes. Fine. Perfect. Okay. So Bhuvi, straight off the bat, describe yourself in 5 sentences, starting from I am, like 5 words, 5 adjectives. Okay. So hello everybody. I am Bhuvneshwar Manas. I'm a makeup enthusiast and a fashion enthusiast as well. Like I've been in the industry of makeup and fashion from last 5 years, and I've been working in Delhi, India, Dubai, and right now I'm working in a studio called Anemoy, and it's owned by a very good friend of mine, Anisha. So Bhuvi, you mentioned that you got into this industry 5 साल पहले. Yes. So how did you start? What was the story behind it? Journey. Actually मेरी journey शुरू हुई थी जब मैं स्कूल में था. I was not into makeup to be very honest. मैं initially था art में, painting में and everything. तो स्कूल में ना मेरा इस पे हाथ बहुत अच्छा था. And after that completing my school, I thought कि I can make it a career. But उस टाइम पे मुझे लगा makeup is also an art. Whatever I do, like if you see my makeup, that's more artistic. Yeah. It's not like more of a makeup. It's like a more of artistic makeup. So I thought to opt as my thing ki okay, I can do that as well. But at that time, to be very honest, pursuing makeup is a task. So I was very dicey about it. I should take it as a career or not, or I should take it as a hobby. तो उस समय I was exploring. वहाँ से मेरी graduation and all हुई. I was doing the BBA. And side by side, I was doing the makeup as well. Okay. तो उसके बाद after my graduation, I make a tough move कि I have to do something in makeup because education girl is not for me. Yeah, it's not for me. So उसके बाद I went a very big step. Like मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, तो मुझे घर पे सब इतना पैम्पर्ड करके रखते थे, वो मुझे बाहर कभी जाने नहीं देते थे. तो after completing my graduation, I made a very hard step. I said my parents, I want to go to Dubai. And I literally went Dubai for the very first time alone, and I explored Dubai for 2 years. और वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सीखी. जब आप अकेले रहते हो ना, तो you learn a lot about everything कि आपको क्या लेना है, आपको किस चीज़ में करियर बनाना है, और उसके साथ साथ how to live life alone is a very different task. जब आप घर पे होते हो ना, तो आप एक बहुत सेफ शेल में होते हो. तो whenever I be alone, वो 2 साल की जर्नी पे मैंने इतना कुछ सीखा. And then I went back to India. And I thought कि makeup is the only thing, artistic things is the only thing I want to opt in my life, and that's how my journey started actually. कभी ऐसा लगा कि when you were starting out कि बहुत female dominated industry है, how am I gonna survive in this? I won't lie, female dominating industry है, but I have something unique. What is it? Like unique, I don't know, people say that like if I walk in the room with the 3 females, people gonna observe me first. So this is the first impression which I have on people. I like, मैं कोई वो बड़ी बात नहीं कर रहा. Is that what people say me? If I walk with people around in the room, जो पहली नजर रुकती है वो मुझ पे रुकती है. And the second thing is, if I talk about my skills, I have a very different skill. जो आपने like, I'm not like कुछ किसी को बोल नहीं रहा हूँ, but जो भी जितने भी दिल्ली के मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका मेकअप इज वेरी लाइक जो मुझे पसंद नहीं आता पर्सनली. सो आई एम लाइक मोर ऑफ अ आर्टिस्टिक पर्सन हु वांट टू एक्सप्लोर द आर्ट, नॉट लाइक पेंट द फेस. सो दिस इज द थिंग. स्टीरियोटाइप फेस करते हो इस चीज़ की वजह से? स्टीरियोटाइप तो देखो वो तो शुरू से ही होता ही है. बट इस इंडस्ट्री में ठीक है वो है ही. बट मुझे जितने भी लोग मिले हैं ना, वो ज़्यादातर सपोर्टिव ही मिले हैं. When you started off, like आपकी family was supportive about this. How did your friends like? Were there different reactions? Because I mean, obviously हमारी country में ये बहुत stigmas हैं True. around this. So
तो फर्स्टली जब मैंने अपने घर पे बताया कि लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने घर पे कभी बताया नहीं कि आई वांट टू परस्यू मेकअप एज अ प्रोफेशन। ओके शुरू से मैं एजुकेशन में अच्छा था, तो उनको लगता था कि ठीक है ये एजुकेशन की स्ट्रीम में ही आएगा। बट धीरे धीरे आई वाज डूइंग मेकअप, पर मेरे पापा को पता नहीं क्या था कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करे। आई लाइक ये तो सपने में ही सोच रहा। मैंने कहा हाँ आई विल डू इट, मेरे मन में ये तो सोचना भी मत। पर घर वालों ने मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी ऐसे रोका नहीं, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है स्पेशली जब मेल्स इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स उनको इतना सपोर्ट नहीं करते। बट आई एम वेरी ब्लेस्ड विद इट कि मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से। और एक लेवल पे आके जब आप एक इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो कोई नहीं पूछता भाई तुमसे। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ आई गेस। तो अगर आपके पेरेंट्स को दिखता है कि ही इज डूइंग नाइस और अपना देख रहा है अच्छे से, तो नोबडी आस्क, तो दे आर हैप्पी विद इट। और अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूं, तो मेरे दोस्तों ने ही मुझे एनकरेज करा था कि यू शुड गो इन दिस। तो मेरे लिमिटेड दोस्त ही हैं, 5 से 6 दोस्त, और वही दोस्त मेरे 10 साल से हैं। सो दे सपोर्टेड मी लाइक होली कि यू शुड गो इन दिस एंड उनका सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सो लाइक देयर आर लॉट ऑफ जर्नी कि जहाँ पे इनिशियली जब आप छोटे होते हो तो आपके पास मेकअप इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट गाइस, मेकअप इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो माय फ्रेंड एंड फैमिली लिटरली सपोर्टेड मी टू इन्वेस्ट इन ऑल दीज। तो फ्रेंड और फैमिली का सपोर्ट तो मुझे रहा ही है शुरू से, जिसके लिए मैं लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड विद इट। So when you went to Dubai, like was it for your training, makeup training, or you've कहीं से training आपने? यस, तो एक्चुअली दुबई जाने से पहले जब मैं वहाँ पे निकला था, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पशंस होते हैं, वहाँ जाके ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। तो थिंग्स बहुत ऊपर नीचे हुई। वहाँ जाके आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब एक्चुअली। वहाँ पे जाके मुझे ऐसा जॉब मिली तो नहीं, बट आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट इन द मेकअप इंडस्ट्री। आई वर्कड विद सम अमेजिंग पीपल आउट देयर। और मैंने देखा बिकॉज इंडिया में जो इंडस्ट्री है मुझे लगता है वो बहुत धीरे है, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं है। बट इन दुबई यू कैन सी अ वेरी गुड प्रोफेशनलिज्म एंड आई लर्न अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ अ प्रोफेशनलिज्म वहाँ से। तो वहाँ से मुझे एक्सपोजर भी था एंड एवरीथिंग वाज देयर। और मैंने कुछ मेकअप लेक्चर्स भी लिए हैं, तो लाइक पर्टिकुलर आर्टिस्ट जो मुझे पसंद है उनसे मैंने लिए हैं। कौन थे? लाइक वहाँ पे एक थी जेसन, और वहाँ पे एक ना लाइक जो मास्टर क्लासेस होती हैं ना, वो कंडक्ट होती है। तो एक जो मेरी फेवरेट है डनेसा, उनकी मैंने ली थी एंड इट वाज अमेजिंग। तो मैं ज़्यादातर क्लासेस उनकी लेता हूँ जो मुझे लगता है कि दे कैन रिलेट टू माय आर्ट, जो कि थोड़ा आर्टिस्टिक जिनसे आप है। इंस्पायर्ड फील करते हो। यस। And I feel like it's not even about learning art from them. It's about exchanging the of ideas, of thoughts, of that creative aspect. देखो एग्जैक्टली देखो मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत है, सबकी टेक्निक्स अलग है बस। हाँ. तो वो एक टेक्निक पकड़ में आ जाए और तुम उस टेक्निक से नॉट एग्जैक्टली आप उसी को ले लो, जस्ट ऐड अ लिटिल बिट, कुछ अपनी टेक्निक ऐड करो एंड जस्ट मेक अ न्यू थिंग। दिस इज इट। I also like the fact कि प्रेरणा for that matter कि आप दोनों ना मेकअप को मेकअप की तरह नहीं, यू टेक इट एज एन आर्ट, Yes, फॉर्म ऑफ आर्ट, yes, एंड इट्स yes. वेरी इंपॉर्टेंट। मेकअप आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट वाला वर्ड ना लोग समझ नहीं पाता। आई डोंट थिंक पीपल इन इंडिया काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट बीइंग एन आर्टिस्ट मींस। वो उनको आर्टिस्ट मतलब अगर सिर्फ आर्टिस्ट लगाओ तो लगता है कि पेंटिंग करने वाला। मेकअप हो गया है कि हाउ टू अप्लाई कंसीलर, फाउंडेशन लगाओ, पाउडर लगाओ, और फिर एक आई लुक, मतलब आप, मैंने जो नोटिस करा है ना, people don't care about learning the technique. Exactly. They are focused on आप लुक कौन सा सिखाओगे। Yes. और जब आप एक लुक की बात कर रहे हो तो आप अपने आप को इतने से इतने पे लेके आ रहे हो। Exactly. और मैंने ये देखा है इंडिया में भी ना, मैंने कुछ लोग से मेकअप सीखा, तो मैंने वहाँ पे देखा वो लुक सिखा रहे हैं, बट जो मैंने दुबई में लिया ना, they were teaching the techniques and that's the big thing. If you know the techniques, तो वो बहुत एम्ब्रेस होती है आपकी स्किल्स। हाँ, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, Exactly. there is no limit to create Exactly. anything. When did you start applying makeup to yourself? It was when I was in 10th. 10th से? Yes. क्या बोलती थी पब्लिक? Public, to be very honest, पहले ना मैं बहुत हेजिटेट था कि ठीक है बाहर मेकअप नहीं, I will do just for the Instagram. ठीक है, तो मैं इंस्टा पे थोड़े पिक्चर्स एंड एवरीथिंग लगा के चाहता था। बट मैं ऐसे व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर,
उसके बाद आई थॉट कि ठीक है लेट इट बी. पता है क्या, उस एज में तुम सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे एंड ऑल द सिचुएशन, बट एक मैच्योरिटी लेवल एक उस एज में आ जाता है कि ठीक है बाहर के लोग हमारे घर के बिल तो नहीं देंगे, तो वी शुड नॉट गिव अ फक अबाउट इट. सो इसीलिए आई जस्ट से कि जो भी लोग बोल रहे हैं लेट इट बी. आई हैव लाइक मुझे खुद में होना चाहिए कि ठीक है आई एम ओके विद इट. इफ आई एम ओके देन आई डोंट गिव अ डैम नाउ टू एवरीवन. घर वाले बोलते थे कुछ? घर वाले इनिशियली क्या कर रहा है ये वो, बट अब दे आर ओके. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा होता है कभी कभार जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, अगर मैं थोड़ा सिंपल रेडी हो गया ना, माय मॉम वाज लाइक आज ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा. आज थोड़ा समझ नहीं आ रहा. मैंने कहा अच्छा. मतलब आपकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है या फिर लाइक वेरी ओपन माइंडेड टू दीस थिंग्स? they are orthodox but they are adapting everything. So this is a very good thing कि वो घर वालों से पता है पड़ोसियों को ज्यादा दिक्कत होती है कि लड़का क्या कर रहा है. पड़ोसियों को तो बहुत दिक्कत होती है. मेरे को बोला है, मेरे को जब भी घूमते हैं पड़ोसी दिखते हैं, बेटा गजरा बना लगा दूं तेरे सर पे. वो क्या कहते हैं उसको, तो पिगटेल, व्हाट इज इट कॉल्ड? चोटी. वो परांदा. यस. कितने बार होते पड़ोसी लड़कियां बाल कंघी कर रहे होते, मुझे बुला लेते, भैया आपको भी बांध देती हूँ बाल में. बट इट इज व्हाट इट इज. मैं बोलता हूँ मेरे बाल में होगा, तुम्हारे क्या जा रहा है. And it's like you carry yourself so gracefully, like when we look at your pictures and everything, like एक वो confidence, yes, and you know like it not is, ashamed of it. This is who you are and Yes, you're of proud course. of and it. it is Yes, so yes. empowering and so inspiring. So and obviously when you're doing something, हर चीज के साथ एक positive चीज और एक negative चीज वो तो आती ही आती है. है. वो तो हर चीज के साथ आती है. So do you get that on social media, like a lot means a lot, like every single day. But पता क्या होता था, इनिशियली ना मैं इन सब से बहुत हार्म होता था इंटरनली कि why people are saying this, there is so much hate on the internet. If there is a love on internet, there is a much more hate on internet, which is very scary. Yeah. Which is very scary. And जिस इंडस्ट्री से मैं हूँ and I am applying makeup on myself, the people see in a very wrong way, which is absolutely wrong. ठीक है, तो section, if you see my picture, the section was like exploding with the hate comments. और ऐसे hate comment कि if I think about it, they are very depressing. Actually very depressing. I've seen them. Exactly. तो एक स्टेज ऐसा था कि जब शुरू में था ये स्टेज, तो I was like, why people are saying this? I'm doing something wrong or this and that. और I was like कि मैं ही क्यों, और मेरे पे मतलब if you are saying something very rude means you should not exist to this earth. You should die. So like comment like this literally harms a lot. But at this age, I'm like कि ठीक है अब मैं खुश होता हूँ, थैंक्स फॉर एवरीवन हु इज हेटिंग, बिकॉज दैट इज एक्सप्लोरिंग माय रीच मोर ऑन द इंस्टाग्राम एंड द व्यूज एंड द लाइक्स आर मच मोर बेटर नाउ. ये कमेंट था आपके उसमें, हेट कमेंट ही था. यस. कि सारे लड़के जो पार्लर में जाते हैं काम करने के लिए, लड़की क्यों बन जाते हैं? या व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? देखो उनके बारे में मैं ये बोलूँगा कि अगर वो बन भी रहे हैं तो इट्स देयर चॉइस फर्स्टली, एंड आप अपना नज़रिया बदलोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी. इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक. अगर आप अपनी थिंकिंग किसी और पे डाल रहे हो तो उसमें आपकी दिक्कत है, उनकी दिक्कत नहीं है. सो दिस इज माई आंसर ऑलवेज. तो जब भी मैं देखता हूँ कि मेरे सेक्शन में इतने हेटरे आ रहे हैं, तो व्हाट आई सी कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये उनका फॉल्ट है कि उनकी अपब्रिंगिंग इतनी नहीं हो पाई. और मोस्ट ऑफ दिस कमेंट्स लोगों की डीपी भी नहीं होती, लाइक यस दे आर फेक, जिनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है. वो क्या बोलेंगे किसी को? इट्स सो इजी टू मेक अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम. असली अकाउंट से नहीं आएंगे ये लोग, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा Exactly, कमेंट पता किया, लग नकली जाएगा. अकाउंट से आके कुछ ही बोल के चले जाते हैं. यस. बट क्या इनको डिटेन करना, मैं तो नहीं, आई लाइक द फैक्ट कि आपने डिलीट भी नहीं किए कमेंट्स. हाँ, मैंने कहा करने भी नहीं चाहिए. लाइक यू वॉन्ट बिलीव, मेरी एक पोस्ट पे तो नीचे लोगों लाइक लिटरली उनकी चैट हो रही है नीचे कि तू ऐसे कैसे बोला है. तो ऐसा नहीं है कि सपोर्टर्स नहीं है, सपोर्टर्स भी हैं, बट हेटरे भी है. तो मतलब ठीक है, एंगेजमेंट आ रही है उससे मेरी तो सही है. मैं अब दिमाग में नहीं लेता, अब मैं ऐसे लेता हूँ ऑन द बिजनेस. ठीक है, रीच आ रही है. What are your thoughts on the artists that are currently like in this industry? Like, is there something कि जो आप चाहोगे मतलब change होना चाहिए कि like A lot. like क्या है, like what are your thoughts? यहाँ की जो इंडस्ट्री है, स्पेशली दिल्ली की जो मेकअप इंडस्ट्री है, आई लिटरली हेट इट. मतलब ये बहुत बड़ा वर्ड हो गया, हेट इट. आई डोंट लाइक इट, आई शुड से. Okay. ठीक है, क्योंकि मुझे उनका मेकअप का एल्गोरिथम समझ नहीं आता बिल्कुल भी. मे बी वो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज़ उनकी इंडस्ट्री की चल रही है. हाँ. यहाँ पे वो चल रही है, बट
मुझे लगता है हमें इंटरनेशनल टेक्निक्स लेके आने की बहुत नीडेड है, जो कि यहाँ के मेकअप आर्टिस्ट में मुझे बिल्कुल 1% भी नहीं दिखती है। तो वी शुड अपग्रेड आवरसेल्फ, लाइक नॉट ओनली द मेकअप आर्टिस्ट, द पीपल जो मेकअप करवा रहे हैं उनको भी अपग्रेड होना पड़ेगा कि भाई ये बहुत हो गया पोता पोताई। उनके लिए बस वो हल्दी लुक करना है, एग्जैक्टली हल्दी पीला नीला engagement हरा, look करना एग्जैक्टली है। हाँ, we should opt some international technique, and making makeup artist is not just like makeup artist, it should be artistic form, like not only mua. Yes, I hate this word. और ये mua. इतना ज्यादा इस इंडस्ट्री में है ना, लाइक द प्रॉब्लम व्हिच आई फेस समटाइम्स कि लाइक लोग आपको अप्रोच करते हैं फॉर मेकअप, इवन इफ दे लाइक दैट, दे विल बी लाइक फोटो दिखाओ, ब्राइड की फोटो Yes. दिखाओ, लाइक कि उसने ज्वेलरी पहनी होनी चाहिए, Exactly. उसको लहंगा पहना होना चाहिए, एंड देन इट्स जस्ट सैड दैट वो आपका वर्क नहीं देख रहे। Yes. वो एक कुछ और ही देखना चाहते हैं, और ये इतना प्रोमिनेंट हो गया ना इंडस्ट्री में। लाइक हैव यू फेस्ड Of these things? course, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ब्राइडल बुकिंग्स यहाँ का बिजनेस बहुत है और मुझे उसमें से 10% ही आती होंगी, बिकॉज मेरा वो आर्ट है ही नहीं जो मैं लोगों को दे पाऊँ उस सेक्शन में। उनको एकदम वो चाहिए, जब भी मेरे पास कोई बुकिंग आती है ना तो ये साफ बोलते हैं कि आई वांट प्रीवियस पिक्चर्स, आप दिखाओ मेकअप ऐसा वैसा। तो फर्स्टली उनको ये समझना चाहिए कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट आपको पिक्चर भेजते हैं, सोशल मीडिया इज देयर, आप सोशल मीडिया पे हो, देयर आर अ लॉट ऑफ एडिटिंग, जो आपको दिखता है वो होता नहीं है एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबके फीचर्स अलग होते हैं, सबका स्किन अलग होता है। ठीक है, आप एक सेक्शन देखना चाह रहे हो कि व्हाट योर आर्ट इज, वो आपने सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देख लिया है, दैट्स व्हाई आप हमसे पूछ रहे हो, बट स्टिल यू वांट, तो मुझे वो समझ नहीं आता। इंडिया में ना वो लोग नॉट जस्ट मेकअप आर्टिस्ट, लोग भी एजुकेटेड नहीं है रिगार्डिंग मेकअप। उन्हें एक्चुअली आइडिया नहीं कि व्हाट इज मेकअप एग्जैक्टली नहीं है। पब्लिक को जो चाहिए था मेकअप आर्टिस्ट ने बल्क में बेचने लग गए वो लोग। इन्हें लुक्स चाहिए, हम लुक्स ही बेचेंगे, टेक्निक के बारे में क्या ही बात करना। यस, अरे they end up creating, you look at the before and after, everyone looks the same. exactly हमने किसी का तो profile देखा था ना, हमने किसी का profile देखा what था। is this? मैंने कहा everyone is looking the same girl, मैंने कहा एक ही मॉडल लेके and exploring, मैंने कहा ओके। तो मुझे ये मतलब मेरे को ये लगता है कि इफ यू आर डूइंग मेकअप यू शुड डू मेकअप ऑन लाइक उनके फेस के हिसाब से, उनके फीचर्स के हिसाब से। व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट इज डूइंग, दे आर अप्लाइंग द सेम टेक्निक ऑफ एवरीबडी, दैट्स व्हाई एवरीवन इज लुकिंग एंड अप लाइक सेम। सो ये मैंने एक चीज सीखी है कि आई हैव टू डू मेकअप जिस तरीके से उनका फेशियल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से उनके फीचर है, आई हैव टू एनहांस इट, मुझे उनको चेंज नहीं करना। सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ माय whenever I am doing makeup. So the newer generation of makeup artists, yes, do you guys see कि उनमें कोई difference आ रहा है इन चीजों को लेके? yes of course I can see that. Like मेरे कुछ दोस्त हैं, वो 11-12 साल के हैं, they are doing tremendous work on internet. Like internet like literally बहुत अच्छा scope हो गया है सबके लिए, and I can see that they are doing really good in terms of makeup as well. And उनकी एक एज ऐसी है कि वो सब कुछ दिमाग में लेके बैठे नहीं है कि ये चीज़ ऐसी होती है। They are ready to explore, they are ready to learn. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आने वाली जनरेशन पे कि इस लाइक हमारी जनरेशन को चीज़ें थोड़ा लेट समझ में आई हैं, बट उनको चीज़ें सब कुछ दिख गई है। सो दे कैन ऑप्ट द थिंग धीरे धीरे एंड दे कैन डू एवरीथिंग। बट डू यू फील लाइक कि इस सब लाइक इतने यंग एज में लोगों को, बच्चों को सोशल मीडिया एक्सपोजर मिल रहा है, डू यू फील लाइक कि वो एक एजुकेशन पार्ट, जो एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, कि वो कहीं बैक सीट ले रही है? एंड should it be the case? Because obviously अगर आप एक चीज पे इतना फोकस और आपको वो एक फेम इतनी यंग एज में 11-12 साल में आपको वैलिडेशन इन चीजों से मिल रही है, तो वो एक एजुकेशन बैक सीट ले लेती है। yes that's true, मुझे लगता है एजुकेशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, बट इफ़ यू नो कि आपको किस पाथ में जाना है, इफ़ यू कैन अर्न दिस, that's Nothing it. matters after that point. Exactly, because at the end the money matters, and तुम क्या कमा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ रह रहे हो, दैट मैटर्स। यस ऑफ कोर्स एजुकेशन शुड बी देयर, आई एम नॉट सेइंग इट। एक पर्टिकुलर लाइक अगर कोई 11-12 साल का बच्चा है, उसको पता है कि मुझे मेकअप इंडस्ट्री में खाना है, तो आई विल सजेस्ट हिम कि यू शुड डू योर लाइक एजुकेशन साइड बाय साइड, यू कैन डू योर मेकअप एज वेल। जब आपका एजुकेशन, एक बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, आफ्टर दैट यू कैन ऑप्ट फॉर ठीक है मेरा तो अब मेकअप में ही है। तो लाइक दोनों का बैलेंस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Bhuvi, what is your definition of beauty? What is beauty? Beauty for me is like ये सब बोलते हैं ब्यूटी इज द आईज ऑफ beholder, ठीक है, वो तो एक अलग चीज़ है। सो मेरे लिए ब्यूटी जो है, देखो
इंसान सब अलग अलग दिखते हैं, यहाँ की जो ब्यूटी है वो डॉक्टर्स ने ले लिया है, वो सब दे देते हैं, ठीक है, बट द ब्यूटी फॉर मी व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू फील, how you are making other person comfortable in front of you, that's the beauty for me. तो जो ये फिजिकल अपीयरेंस की ब्यूटी होती है, Yes. आपको लगता है कहीं ना कहीं काफी फ्लॉड है बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन्फ्लुएंसर्स, कि काफी फ्लॉड हो चुकी है? पीपल आर गोइंग टू द एक्सट्रीम एंड्स टू चेंज हाउ दे लुक. Of course, absolutely. मतलब जितने मेकअप इंडस्ट्री में ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, इफ यू गो फॉर एनी डॉक्टर, दे आर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लाइक, और लोगों पे ना प्रेशर भी आ गया है कि आई वांट लाइक अपनी आईज वेरी लिफ्टेड, मेरे होठ बड़े होने चाहिए एंड ऑल दिस. ठीक है, वो भी एक सेक्टर है, वो इनकी पर्सनल चॉइस है, इफ दे वांट टू डू इट दे कैन डू इट, बट मेरे लिए होता है कि मेरे लिए फर्स्ट होता है कि फिजिकल अपीयरेंस, यू शुड नो हाउ टू एनहेंस योर फीचर्स बाय मेकअप. इफ यू नो दिस, तो कोई भी इंसान बुरा नहीं देख सकता. सो दिस इज द थिंग व्हिच आई सजेस्ट टू द पीपल. मैं तो रिसेंटली पता चला कि द कॉस्मेटिक सर्जरी हैज गॉन टू द एक्सटेंट कि नेक लेंथनिंग सर्जरी होती है. मुझे नहीं पता था इस चीज के बारे में. Like you know that? every No, I didn't know surgery, that. just मेरे को भी नहीं पता था. just take a name, your neck, nose, lips, chin, eyes, everything you can do it in your face, like everything. So bad, man. Like changing yourself. But I see bad. I wouldn't say that it is bad. Yes. I don't know. If I mean again, see, with makeup also, then we can claim that people can say that makeup is bad in a certain way. Ki, Yes. Like you should feel confident how Confident you are. in your skin, yes. But it's again, it's if you take it as a form of art, as a form of expression, that you are expressing yourself with it. So I mean that can be really positive. And See, with makeup, I'm fine with the point कि you're using it as a way to feel confident, and it hasn't any permanent effect on your body. But doing body modifications, having implants, silicone, वो क्या कहते हैं उसको जो lips में लगाते हैं, fillers, Yes. fillers and all. I don't think इस यहाँ तक जाना चाहिए लोगों को. अगर मैं इस सेक्शन पे आऊँ तो मुझे लगता है ये लोगों की पर्सनल थिंग होती है, तो इफ दे वांट टू दे कैन, इफ दे डोंट इट्स टोटली अप टू देम. बट हाँ, दिस इज द फैक्ट कि एक जो परफेक्ट आ गया है ना, तो वो एक लोगों ने दिमाग में बिठा लिया है कि लाइक अपलिफ्टेड आई, बिग लिप्स एंड बिग लाइक एवरीथिंग इज द परफेक्ट सिनेरियो एंड यू हैव टू बी ऑन दैट सिचुएशन. मुझे लगता है कुछ परफेक्ट नहीं होता है. कुछ नहीं होता. एग्जैक्टली, कुछ परफेक्ट नहीं होता है. आज वो परफेक्ट है और क्या पता कुछ वक्त बाद कुछ और चीज परफेक्ट हो जाए. तो ऐसा नहीं है कि तुम अपनी बॉडी को देखो ना, चेंज अब साउथ कोरियंस परफेक्ट है अभी आज के डेट में. लोग एग्जैक्टली ट्राई टू नैक दैट लुक, सर्जरीज भी करा रहे हैं लोग कोरियन. and like but then where people are losing their identity, like they would say ki, they wouldn't say ki like I want to be a better version of myself. Exactly. They compare, like social media ne kar diya ki like I want to look like Kim. So like Yes. that is what they're aiming for. yes, It is not about ki how I can enhance myself. this is a very nice point कि if you want to become a better version of yourself, this is perfect. But Yeah. if you want to become someone else, Yeah. this is like Not. this is not at all. Yes. Yeah, that is Who's your favorite makeup artist? Like, sorry, you asked that question. You're much better at asking that question. I absolutely love asking this question. One makeup artist from Indian makeup industry that you would get your makeup done from, and one makeup artist you would never get your makeup done Oh my from. god. Oh my god, girl. I get. Okay. The one makeup artist is definitely Hamira Sakrani. Oh, I love her makeup. I love her makeup. She is amazing. And the artist which I'm not gonna get my makeup done. Like बहुत सारे क्या? बहुत सारे. I'm just thinking the name of one जिससे मेरी ज़्यादा बात ना होती. So like I'm just thinking, like literally I have to think a lot about this. because you have so many names and you are ये like बहुत सारे name है और majority बता से दो, मेरी 5 से बात- बता दो, 5 जो भी दिमाग नहीं में नहीं आ रहा भाई. This industry is so small as well कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर रहा मुझे. बट है काफी हैं. बता दो यार एक. Like I don't want to name them to be very honest. Okay, But yeah. हाँ है. Like ऐसे करके बता दो. like yeah. काफी बड़ा नाम बोल. ये तो नहीं बोल सकते कैमरे ठीक में. है. Yes. I like her. Yeah, But yeah. ठीक है. yeah. Yeah. No, I also like her. I wasn't expecting. I like her, but I don't like her techniques. Yeah,
But it's the way that she's been in this industry since so long, and she's changing according to like what is required in Yeah. terms of presenting. Yes, But she has that crowd, you know. People are of listening to her. course, a lot. That's good. And she's like a It's very good for prominent her. figure in the industry as well. Hint Yeah. दे रहा हूँ लोगों को मैं कौन. Where do you get your inspiration from for all these body arts? या फिर Yeah. when you see like लाइक देखो, मुझे ना इंस्पिरेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, मुझे लाइक बैठे बैठे इंस्पिरेशन आ जाती है. अभी लाइक वो जो डिस्को वाली फॉल है हाँ. वो मेरे आँख पे लग रही है, हाँ. तो मुझे कि इंस्पिरेशन आ गई है. आई कैन डू मेकअप समथिंग रिलेटेड टू दैट. तो वट एवर wow. सराउंडिंग्स आई हैव, आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. लाइक चाहे वो नेचर हो, चाहे वो सीरीज हो, वो चाहे छोटा सा पेड़ ही ना हो, तो लाइक आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द थिंग्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड मी. लाइक मुझे किसी इंसान को देख के सच नहीं आती इससे है. मिलेगा कुछ इंस्पिरेशन. Yes, it's nice. Nice ना. Like the nice thing about him, he is hugging Yeah. anything. चिपको moment. So I can do The चिपको something like moment. this. कुछ ऐसा look जो एक साथ ही हो. I cannot separate it. Yeah. Yes. Anything you want to tell the budding artists in the industry who have been brainwashed by whatever is going on? So like, because I don't think they are inspired at all. They just They're inspired, but they're inspired with the wrong things. Yes. I would say कि अपने अंदर एक creativity लेकर आओ. वो सबके अंदर होती है, वो explore करना थोड़ी सी difficult होती है. If you can explore it, you can make wonders. Wonders means wonders. You can be out of the box. आप एक भीड़ से अलग दिख सकते हो if you have that. आपके पास भले इतना name fame नहीं आएगा, but जब लोग आपको देखेंगे तो आपको बोलेंगे he has something unique which don't like जो majority of the people के पास नहीं है. तो वो अपने अंदर से वो एक चीज़ लेकर आओ, और जितनी चीज़ आप देखोगे ना उतनी चीज़ आप कंफ्यूज होगे. तो देखने से अच्छा जस्ट डू वर्क, बिकॉज जितनी चीज़ें आप देखते हो आप और कंफ्यूज होते हो. आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट. तो मेक लाइक अपने दिमाग में एक स्ट्रेट लेकर आओ कि आई वांट टू डू दिस एंड वर्क ऑन दैट. जब आप मोर ऑप्शंस देखते हो ना तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, फिर आप लोगों की तरह हो जाते हो. So whatever you have in you, it's a lot. Just explore it. Just explore it literally. Like everybody have a lot of talent in this world. You just have to like take it out. And this is a very tough, but you have to take it out, guys. I think that comes with practice. Yes. And Yes. in the recent years, have you noticed any change in perception of how people treat male makeup artists or men in particular who do makeup? Yes, there is a change, but मुझे लगता है वो change सिर्फ face पे है, दिमाग में नहीं है. So this is the fact. They show it, but they don't Exactly, actually but believe वो in नहीं it. होता, because मैंने भी देखा है बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट. लाइक मेरे से किसी ने पूछा कि someone is asking about the makeup, and मैंने उनको आपका रेफरेंस दिया, and they were saying the male makeup artist, no, my husband is not comfortable. Girl, your husband is more comfortable with me. Yeah, so I was like, okay, it's up to you. Like, if you don't mind me asking, Yeah, like, I'm just a curious person. Yeah. It's coming from curiosity. yeah. Do you fall under any spectrum of gender? No. Do you identify as a male? Yes, as a male. Yeah, एक छोटा क्वेश्चन था. Yeah. लोग पूछते हैं वैसे इस चीज के बारे में आपसे. नहीं, इस चीज के बारे में तो नहीं पूछते, बट यू लाइक आइडेंटिफाई एज अ जेंडर, बट दे लाइक They might question your sexuality in a way. yes, So yes. I'm asking that too. like I'm a human who love human. Yeah. There can't be a better answer than this. Yeah, exactly. That's all that matters. Yes. It is the best answer. So, what is the longest amount, like the longest duration that you've done on like curating a particular look? 13 hours. 13 hours in a row. In a row. So there was a look, because whenever you're doing the like body art and everything, आपको सामने कुछ रखना है, and there is a image, and उसके according आप यहाँ देख के नहीं, आपको वहाँ देख के बनाना है. And you're doing it on yourself. You're not even Yes. doing it on someone else. Yes. कौन सा look ऊपर थे ही. वाला? There is That a snake वाला? jungle look. Yes. Okay, yeah, I So, yeah. realized. And you've also worked with Rakhi Sawant. Like, Yes, yes. मेरा I worked कुछ with पूछना her. था. How was it? How is it working with Rakhi Sawant? It was just a day जो चला गया. I don't want to talk about it much. It was not a very good experience for me, I should say. okay. Yes. तो ठीक है, वहाँ का मतलब मुझे पता लगा कि इंडस्ट्री में बहुत तरीके के लोग होते हैं. It's just you should know how to deal with different people. I was too nice with everybody, but there is no need to too nice with everyone. Yes. I thought Rakhi Sawant would be very fun, chirpy She's a type. funny person. Yes, she's fun, but like एक वक्त के बाद like
सबके मूड स्विंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो इन अ प्रोफेशनल लाइन आई गेस मूड स्विंग्स अ वेरी बैड थिंग व्हिच यू कैन हैव, सो मुझे वो समझ नहीं आते पर्सनली. ऐसे एज अ एंटरटेनर शी इज गुड. Do you work out? Yes, I do. What do you do? I do everything in workout. Everything? Yeah. Like as in yoga or नहीं, something gym. else? You go to the proper gym? Yeah. वहाँ पे तो actual male chauvinist type लोग आते हैं. Yeah. How do you like deal with them? Like to be very honest, when I enter in the gym, like everyone treat me as like मैं इतना सज धज के तो नहीं जाता हूँ mostly. When I walk, they like everyone like treat me nicely and everything. तो वहाँ पे gym में मुझे ऐसा कुछ issue नहीं है. बिकॉज जिम में मैं भी थोड़ा ऐसे ही जाता हूँ, ठीक है ब्रो, हाय ब्रो, यस ब्रो, ऐसे ठीक है. It's fun. तो लाइक मैं अपने आप को ना लाइक सिचुएशन के हिसाब से लिटिल बिट में ढाल लेता हूँ. You had a previous Instagram account also. And Yes. It like उसमें कितने फॉलोवर थे? लाइक इनिशियली आई गेस 15 थे एक में, 15,000 एक में थे 10, तो मेरे दोनों आईडीज ही हैक हो गए. ओहो. एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड फ्रॉम द रूट. एंड एक स्टेज ऐसा आ गया था कि एक आईडी वाज एक्सप्लोरिंग सो नाइसली, और उसके बाद एक स्टेज ऐसा आ गया कि इट गॉट हैक्ड. और फिर बहुत हिम्मत होती है व्हेन यू हैव लाइक, बिकॉज हमारा जो वर्क है, आई पुट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया. ठीक है, वी आर अ क्रिएटर और हम सब सोशल मीडिया पे ही रखते हैं. जब वो एक चीज हैक हो जाती है उसके बाद लाइक आई मेक माई माइंड इट्स ओके, इट हैपन, आई हैव टू ओपन द अनदर वन. आई ओपन द another one and it got banned within a week. So I was like कि within a week what the fuck is wrong? Banned हो गया? हाँ. Like didn't they give you any reason do for you it? feel like there's like something fishy going on behind that कि दो account भी hack हो Exactly, गए मुझे और लगा कि ban भी हो? दो अकाउंट एक साथ हैक कैसे हो सकते हैं, और एक अकाउंट तो इंस्टा वालों ने हटा ही दिया. मैंने कहा ये क्या हो गया भाई. तो फिर मुझे रीजन समझ नहीं आया. उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे मेल दो एंड एवरीथिंग. आई डिड एवरीथिंग एंड आई वेटेड फॉर एटलीस्ट अ मंथ कि मेरा क्या पता अकाउंट आ जाए, बिकॉज कोई प्रोफेशनल ग्लिच था, किसी ने वो हैक नहीं करा था, इंस्टा ने खुद ब्लॉक किया था. तो मुझे वो समझ नहीं आया. तो आई वेटेड फॉर एटलीस्ट अ मंथ, एंड जब मुझे पता लगा कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, दिस इज द थिंग व्हिच यू लव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन. How many inches are there? 6 inches. 6 inches worth of heat. For how long have you been wearing heels? Like when you wore them for the first time, like एक्चुअली हील्स में पहनता नहीं था, बट जब मुझे लगा कि मेरे कुछ आउटफिट्स में लाइक ये जीन्स बहुत लंबी है, इसमें कुछ नॉर्मल पहन लो, तो ये तो Yeah, short people problem. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है कि किसी पर्टिकुलर आउटफिट के साथ ही मैं हील्स लगाता हूँ, और हील्स में लगा रहा हूँ लास्ट 1 साल से ही लगा रहा हूँ. लाइक आई एम नॉट अ ह्यूज हील फैन, okay. बट आउटफिट के अकॉर्डिंग आई हैव टू वेयर इट. अब मजा आता है They 1 are साल freaking uncomfortable how girls wear it. I like hats off to them, girl. लड़कियों तो 9 इंच के हील पहनते हैं ना. हाँ. How do people manage I wearing heels? cannot wear heels. Like I can see that. How do you style yourself? Like is there like how do you get a look in your head कि you know I should be doing this या you know ये इसके साथ. Actually मैं ना एक पर्टिकुलर पीस उठाता हूँ like this top, तो मैं उसके साथ का लुक निकालता हूँ फिर. तो like मुझे लगता है कि ये आउटफिट्स का जो क्रिएटिविटी था ना, कि ये मेरे दिमाग में बचपन से ही था. इवन जब मैं छोटा था ना, तो तब से आई वाज लाइक वेरी मच एक्सपेरिमेंटल इन माय आउटफिट्स. And when it comes to brands, Indian makeup brands, like which is your favorite brand? Indian makeup brand. Like Indian or like indie grown, like not like international, like MAC and all these, like the like commonly used brands that are you know going on in social media जो हर एक छोटे artists use कर रहे हैं. बहुत से हैं, but the one which I like, AAC is doing amazing. Okay. The MEU is doing amazing. Guys. ये सुनना चाहता था. मैं बोलने वाला था कि अगर ये नाम लेते ना कि you're saying that because you haven't used our brand. Yes. How do you feel the quality of these bristles? जब मैं यहाँ पे बैठा और मैं देख रहा था and मैंने ये छुआ and I was like I want this right now. Do you think This it's is so natural or soft. synthetic? What do you think? This is natural or synthetic? It's natural. It's synthetic. It's synthetic. Synthetic feeling natural, girl. This is the thing which I want right Try the now. Bristol Sun foundation. This one? Yeah, this is. Actually, इसकी शेप बहुत अच्छी है. ये ऐसा exact which I'm using, that's from Sephora. इसकी application is amazing. Sephora कितनी की आती है वो वाली ब्रश इंडिविजुअल वाली? I guess it's 1800. One brush. हाँ, this one. And how भाई much is this 300. for? 300. 300. Bye, I'm taking this.
मुझे कुछ ब्रांड के साथ ये भी लगता है कि इवन जो मेकअप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बिकॉज सी आप सिर्फ कंसीलर को कंसीलर बोल के नहीं बेच सकते. Yes. आपके कंसीलर की फॉर्मुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स. आपने Yes. खुद एक अपना फॉर्मूला, सो लाइक उसको यूज करने की टेक्निक विल आल्सो चेंज, बट Exactly. पीपल, लोगों को वो समझ नहीं, उनको नहीं पता. नहीं दे आती. जस्ट नो वन वे टू अप्लाई अ कंसीलर, जो Exactly. वो सोशल मीडिया से देख रहे हैं, हाँ. एंड दे विल ट्राई इट एंड देन द प्रोडक्ट विल नॉट वर्क. सो आई फील लाइक वो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज देयर हैज टू बी अ वे दैट अ टेक्निक दैट योर प्रोडक्ट विल वर्क मोर इफेक्टिवली. डेफिनेटली हर एक लाइक मैंने देखा है लाइक सम अमेजिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट, और मैंने किसी के मुंह से ऐसे सुना है कि दे आर बुलशिट, उनके लिए वर्क नहीं करते. सो कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती. इट्स जस्ट अबाउट द टेक्निक, वो प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो आई गेस यस, लैक ऑफ नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ही है. लोगों को बस जो दिख रहा है, दे वांट टू ऑप्ट दैट, बट सीखने की क्षमता किसी में नहीं है, मुझे ये लगता है. पेशेंस नहीं है वो. पेशेंस नहीं है. बट आई थिंक दिस इज एन इनिशिएटिव दैट ब्रांड्स शुड टेक, कि लाइक आप Of अपने course. प्रोडक्ट्स को सिर्फ दिखाओ मत, एग्जैक्टली. सिर्फ Be मार्केट responsible ऐसे, for what बी you're selling as well. रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. लाइक Yes. यू शुड टेल पीपल कि दिस इज माय प्रोडक्ट एंड इसको इस तरह से आप यूज करो. अभी एक इंटरनेशनल कंपनी थी, दे लॉन्च देयर कलर करेक्टर. Okay. व्हाट आई लाइक अबाउट इट, जब उन्होंने उसे लॉन्च करा, दे सेड स्ट्रिक्टली if you are applying it, you have to wait for at least 30 seconds. Oh, wow. So that's the major like, That is a very big exactly thing. Yeah. that's a very big thing कि if you want to work with this product, अगर आप 30 सेकंड रुक सकते हो तभी लेना, else भाई मत लेना. नहीं लेना. और I worked with that particular product. If you wait for 30 seconds, it's work amazingly. But if you wait for like आपने लगाया उसके ऊपर ही बेस Blend, लगा हाँ. दिया, it like fucked up your makeup. So Yeah. like कुछ companies ऐसी हैं जो actually educate कर रही हैं, और कुछ नहीं भी हैं. तो I think कि लोगों को करना चाहिए. So जो लोग हैं उनको और enhance तरीके से लेके आए. So we'll moving on to the final segments of the podcast. So one last question from, then we move on to the Yeah, FU part. done. So one last question from you. Not even question. What do you have to tell upcoming male makeup artists who have just started out in the industry? उनके लिए if you have some words. Yes, definitely. Male makeup artist के लिए, ये सबके लिए ही होगा, but especially for the male makeup artist, कि don't listen about the people. Just believe in your art. Just believe in yourself. Art is the only thing that gonna keep the other mouth shut. So if you embrace it, like कोई कुछ नहीं बोलेगा. Believe in yourself. Just don't overthink about everything. Just be particular about what you want to achieve in the life. And इधर उधर की चीजें मत देखना. Just be like focused. Because जब आप चलते हो एक जगह, देखो noises तो आती ही हैं. Like we are doing podcast, noises आ रही हैं. We are ignoring them. So that's the main thing which you have to do. You have to ignore these noises to build something very amazing in the life. Right. Very beautifully said. Yeah. Yes. So move on to the final segment. It's called If You. Oh my If You. God. If you. Yes. You start off with first. Yeah, I'll start. Yes. कहाँ चले गए? Let me ask. Yeah, ask. If you could be any vegetable, which one would you be And why? and why? Vegetable. Yeah. आलू. I love आलू. Why? Why? Because या वो टेस्टी होते हैं, सबके सबके साथ मगअप हो जाते हैं यार. आलू के दुश्मन पता कौन है? नहीं. Bindi. You cannot have You aloo can- and bindi together. Yeah, that's true. That's true. Next question. If animals could talk, which species do you think would be the most annoying? Most annoying. annoying. Fox. Fox would be annoying. Yeah. मुझे लगता है सांप होंगे, सारी बातें बता देंगे. नहीं. I love snakes. I don't know why. हाँ, I've seen in your art as well. If you could have a superpower, but it had to be completely useless. Completely useless. What would it be? That's a good question. Superpower कि मैं सब कुछ खा लूँ और मुझे लगे ना. Ah, Oh wow. मुझे केविन हार्ट का याद है. केविन हार्ट said कि I don't want to poop. What kind of superpower would you like to have? I want to be able to hold my shit. I don't want to shit anymore. I can eat as man. I have control over my poop. जब करूँ जब मेरी मर्जी हो. But this is so good. Like you can eat whatever Exactly. you want, but like you're never getting. Yeah, it's nice and useless as well. Yeah. If you were a color, what would it be and why? Black. Why? It's very powerful for me. और basic है पर एक impact छोड़ के जाता है. वो तुम्हें नजर से बचाता है. That's true. That's Yeah. If you could be any fictional character, who would you choose and why?
Harry Potter. Oh. Why not? Like, If you could change your body part with one random object, which body part would you change and with what would you change it? I will change my hair with this. This looking amazing. I thought you would say your fingers with your makeup brushes. Ah, yeah. clever Yeah, it's more easier. Easier, Yes, yeah. look. True. Edward Scissorhand, like Edward Brush's hand. Russia. If you could remove one color in the whole world, what would that be? One color in the whole. Every color is beautiful actually, but if I have to remove one, I will remove white because बहुत जल्दी गंदा हो जाता है. It doesn't make sense though, but yeah. What's the sexiest name you've ever heard? Sexiest name. Derek. Oh damn! The way you said it. Derek. It sounds like- Wow. How do you pronounce your name in like a sexy way? Mine. Yeah. यार मेरा जो नाम है ना वो सेक्सी तो मुझे कहीं से नहीं लगता, धार्मिक लगता है जैसे कोई पूजा पाठ कर रहा है What does it इंसान. mean? भुवनेश्वर, the Lord of Universe. Oh, What? the Lord of Universe. Lord of Universe. Yes. मतलब तो गहरा देखो. हाँ, of course. What's the craziest thing you've done ever after getting really drunk? Like ये तो अभी रिसेंटली हुआ है और उसके बाद तो मैंने like पीना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है. मेरे दोस्त का बर्थडे था एंड जहाँ जिस स्पॉट पे हम बर्थडे कर रहे थे मैं उस स्पॉट से निकल गया एंड वो लाइक एक्सप्लोरिंग द मार्केट, लोगों से मजे ले रहा हूँ, हाँ हाँ हूँ, और मेरे दोस्त मुझे लेकर आया है कि भाई तू आ जा. So this is the craziest thing कि प्रॉपर्टी से बाहर निकल के just talk with the random people. So Yeah. and it's scary as well. Last question. दिमाग से निकल गया. हाँ. Who is the first person on your hit list? It is like what? Hit list. ठोक देने का है. यार नहीं, to be very honest, Not hit list. If you have to imagine hit list, you won't do anything with it. But who's the first person on it? there are a lot to be very honest. मैं अपने रिलेटिव में से उठाना चाहूँगा because they are नाम so, लेना चाहोगे? नहीं, they are so annoying because they're gonna see it for sure. तो जो भी है तो बच के रहे. हाँ. So we'll wrap up the entire खत्म ये बहुत जल्दी हो गया. लिमिटेड टाइम मिलता है हमको ना हाँ. यहाँ पे True. होस्ट करने Off, के Yes, I off get camera understand. Yes. बातें Off camera खूब बातें कर. करें. हाँ. Thank you everyone and it was lovely talking to you everybody. It was like मुझे लगा ही नहीं कि I am here for a podcast. It was a very conversation section and like, share, subscribe to the Makeup Shaker, Mew Cosmetics, Forest House Cafe, and don't forget to follow me on Instagram, Bhuvneshwar_official. Thank you so much, guys. Yeah, thank you. Hi Arjun, how are you? Hi, I'm Prerna. वापस. ए लाइक आपके 9 एपिसोड हुए हैं, अगर आप एक गेस्ट को हटाना चाहो तो वो कौन होगा? Tell me now, tell me. Spill some tea. हमें फंसा दिया. Because you were saying to me as well, right? आप ठीक है, नहीं आप नहीं. ऐसे करके भी बोल सकते हो, it's okay. हाँ, नहीं नहीं.